If you see here, this is O-level physics, May June 2025, paper 1, variant 2. O-level physics, May June 2025, paper 1, variant 2, 1 hour का paper. So let's start with the paper. Okay. Which list contains only vector quantities? क्या mass एक vector quantity है? No. Option A cancel out हो जाएगा. Let's analyze option B. Option B को analyze करते हैं बेटा. If you analyze option B, क्या आपके पास जो है वो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है? जी. ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर क्वांटिटी है? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है? बी इज योर आंसर. सिंपल. लेट्स further move ahead. The diagram shows the distance time graph for a moving object. Okay, so you have a distance time graph for a moving object. What is the description of the moving object? अच्छा जी, moving object की description क्या होगी? देखो distance time graph की मैंने initially distance time graph, देखो distance time graph दो हिस्सों में divided है, this one and this one. One is the blue region, one is the yellow region of the distance time graph. अच्छा जी. First of all, do you remember that gradient of distance time graph क्या होता है? हाँ जी. Gradient of distance time graph क्या होता है? The gradient of distance time graph is equals to what? Gradient of distance time graph is equals to speed. बेटा ये जो येलो वाला रीजन है, लेट्स से दिस इज रीजन ए, लेट्स से दिस इज रीजन बी. कैन यू रियलाइज रीजन ए में ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है? दैट मीन्स रीजन ए में स्पीड डिक्रीज हो रही है. सिंपल. रीजन बी में क्या है? ग्रेडियंट जीरो है. दैट मीन्स योर स्पीड विल बी जीरो. सो यू हैव टू लुक फॉर एन ऑप्शन जिसकी स्पीड डिक्रीज होके जीरो पे रीच कर. बेटा आपने ए बी सी डी में से कोई ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसमें आपकी स्पीड डिक्रीज होके जीरो पे रीच कर जाए. लेट्स सी विच ऑप्शन विल दैट बी. कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें आपकी स्पीड डिक्रीज करेगी और जीरो पे रीच कर जाएगी? ओके. What is the description of the moving object? A ball thrown vertically upwards and then falling back to the thrower? No. A ball starting from rest. अच्छा आप रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हो. एंड स्पीडिंग अप? नो. स्पीड अप वाला ऑप्शन हमें नहीं चाहिए. A rock drop from a high cliff and falling into a sea below? नहीं, ये भी हमें ऑप्शन नहीं चाहिए. डी को देखो. A train braking to a halt as it stops at a station. ट्रेन क्या कर रहा है? ब्रेक कर रहा है या ब्रेक लगा रहा है, स्पीड डिक्रीज हो गई एंड इट स्टॉप्स एट a स्टेशन, स्पीड जीरो हो गई. डी इज योर आंसर. The speed time graph for a falling skydiver is shown. As he falls, the skydiver spreads out his arms and legs and opens his parachute. Which part of the graph shows the skydiver falling with terminal velocity? बेटा terminal velocity का क्या मतलब होता है? Constant velocity. इस पूरे ग्राफ में टर्मिनल वेलोसिटी या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी किस रीजन में है? डी. देख रहे हो डी में आपकी लाइन हॉरिजॉन्टल हो गई है ना बेटा. दिस इज योर टर्मिनल वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी. आगे आ जाओ. The car driver traveling at a constant speed in a straight line sees a hazard, okay, in the road ahead at time t is equals to 0. The speed time graph shows how the speed of the car changes from time t is equals to 0. अच्छा आपको given है the speed time graph of how the speed changes. ठीक है. You are given the speed time graph of how the speed of the car changes from time t is equals to 0. Three students suggest what area एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट. देखो जैसे ही आपके कार ड्राइवर ने एक हैजर्ड सी किया, ही कैन नॉट अप्लाई द ब्रेक्स डायरेक्टली. ब्रेक्स आप डायरेक्टली फौरन से नहीं अप्लाई कर सकते. देयर विल बी अ टाइम फॉर विच यू थिंक. बेटा जैसे ही आपके सामने कोई हैजर्ड आ गया, कोई चाइल्ड आ गया एंड यू थिंक अबाउट अप्लाइंग अ ब्रेक, आप फौरन से अप्लाई नहीं कर सकते ब्रेक. The distance covered during thinking or during the reaction time is known as the thinking distance. ये x क्या हो जाएगा आपका? Thinking distance. What is thinking distance? Thinking distance is the distance covered during the reaction time or the distance covered when you are thinking to apply the brake. तो स्टूडेंट वन तो सही कह रहा है, एरिया x is thinking distance. तो स्टूडेंट टू क्या कह रहा है? एरिया y is the stopping distance. नो. स्टूडेंट थ्री क्या कह रहा है?
area x plus y is equal to the stopping distance y. Because if you realize at this point your velocity has become zero, तो yes, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस हो सकता है. This entire distance can be your stopping distance. Secondly, if I get much more specific, ये जहां पे स्पीड डिक्रीज हो रही है, द पॉइंट वेयर स्पीड इज डिक्रीजिंग, या फिर इस तरह कर लेते हैं, एरिया एक्स इज योर थिंकिंग डिस्टेंस, है ना. थिंकिंग डिस्टेंस, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द टाइम व्हेन यू आर थिंकिंग टू अप्लाई द ब्रेक, और द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम. बेटा एरिया वाई क्या हो जाएगा? एरिया वाई इज योर ब्रेकिंग डिस्टेंस. ब्रेकिंग डिस्टेंस प्लस थिंकिंग डिस्टेंस को प्लस करोगे तो यू विल गेट योर स्टॉपिंग डिस्टेंस, एंड दैट इज व्हाट इज रिटन हियर. स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है? ब्रेकिंग और थिंकिंग का प्लस एक्स प्लस वाई. तो एक तो स्टूडेंट वन सही कह रहा है, स्टूडेंट थ्री भी सही कह रहा है. एरिया एक्स प्लस वाई विल बी ओवरऑल इक्वल टू द स्टॉपिंग डिस्टेंस. बी इज योर आंसर. सिंपल, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड. Y is the braking distance. Shabash, Mohit. Very good. The diagram shows a graph of load against extension for a material. At which point is the limit of proportionality? किस point पे limit of proportionality है? Limit of proportionality is the point till where the force versus extension graph is linear. A is your answer. This is your limit of proportionality. आगे बढ़ते हैं. There is no atmosphere on moon. Okay. Two metal spheres of identical volume but different masses are at rest. Okay, so let's say ये आपके पास एक 1 kg का ऑब्जेक्ट आ गया, और ये आपके पास आ गया एक 2 kg का ऑब्जेक्ट. बोथ आर ऑन मून. ओके, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. अच्छा, इसको इस तरह बना लेते हैं. लेट्स से दिस इज योर 2 kg का ऑब्जेक्ट, एंड लेट्स से दिस इज योर 1 kg का ऑब्जेक्ट. बोथ आर ऑन मून. दे आर बोथ एट रेस्ट. इसकी भी इनिशियल स्पीड 0 है, इसकी भी इनिशियल स्पीड 0. दे आर फॉलन फ्रॉम द सेम हाइट. दोनों को हमने सेम हाइट से फॉल करवाया है. वी हैव मेड द ऑब्जेक्ट्स फॉल फ्रॉम द सेम हाइट. दैट इज दिस. हमने दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेम हाइट से फॉल कराया है. दोनों इनिशियल स्पीड दोनों की 0 है. द टू स्फेयर्स आर ड्रॉप्ड एट द सेम टाइम. हाउ डू द स्फेयर्स मूव्ड आफ्टर दे आर ड्रॉप्ड? बेटा देखो, एक बात समझो. आपके मून पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं. देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन योर मून. इसका मतलब क्या है? इफ देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस ऑफ द मून, व्हाट डज दिस मीन? बोथ द ब्लॉक्स will be experiencing the complete gravitational field strength of the moon. बेटा दोनों की इनिशियल स्पीड 0 है. दोनों ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मून को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे. कैन यू रियलाइज? दोनों ऑब्जेक्ट्स सेम टाइम पे हिट करेंगे ग्राउंड को. ये 1 kg वाला मास एंड 2 kg वाला मास बोथ विल हिट द ग्राउंड टुगेदर. बेटा ये वही एक्सपेरिमेंट है, याद है, जो हमने परफॉर्म किया था कि अगर वैक्यूम में आप एक कैलकुलेटर को और एक हैवी ऑब्जेक्ट को फॉल करवाओगे तो दोनों सेम टाइम पे ग्राउंड पे हिट करेंगे. व्हाई? बिकॉज व्हेन देयर इज नो एटमॉस्फेयर, both the objects experience the same amount of gravitation field strength. Both are starting from rest. Both are falling the same height. Hence, they will hit the ground at the same time or together. Simple. Nothing complicated here. आ गई बात समझ बच्चों. आगे बढ़े. हाँ, कोई सवाल है यहाँ पे पूछ सकते हो. या सवाल. चलो, लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा जी, क्या लिखा हुआ है? स्टूडेंट डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ अ स्मॉल रॉक. डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम. ओके. The weight of the small rock is this. आपके पास weight आ गया है. Can you calculate the mass? Yes. Mass is equals to weight divided by gravitational field strength. Weight क्या है? 1.2. Gravitational field strength क्या है? 9.8. क्योंकि हमें यहाँ पे gravitational field strength नहीं given, तो हम 9.8 लेंगे. 1.2 divided by 9.8. The mass comes out to be 0.122 kg.
मास क्या आ जाएगा बेटे, 0.122 kg इज योर मास, सिंपल। ओके, अब इसको थोड़ा सा ना श्रिंक डाउन कर देते हैं इसको। चलो, perfect. Your mass comes out to be 0.122 kg. She then pours 100 cm cube of water into a measuring cylinder. Okay, this is your initial volume. She then carefully submerged the rock in the 100 cm cube of water. The new reading of the measuring cylinder is 147 cm cube. ये आपकी आ गई फाइनल वॉल्यूम। कैन यू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द रॉक? यस, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम क्या है? 147। इनिशियल वॉल्यूम क्या है? 100। वॉल्यूम ऑफ द रॉक क्या हो गई? 47 cm। अब अगर आप रियलाइज करो तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो बहुत ही गलत ऑप्शन है। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी बहुत गलत ऑप्शंस क्यों है? बिकॉज यहाँ पे तो आपके जो यूनिट्स हैं ऑफ डेंसिटी वो ही गलत है। यहाँ पे आपके यूनिट्स ऑफ डेंसिटी ही गलत है बेटे। अगर यूनिट्स ऑफ डेंसिटी ही गलत है तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी को तो आप फौरन से अपनी नजरों से कैंसिल आउट कर दो। इजीली कर दो कैंसिल आउट ए और सी को। ना ऑप्शन बी एंड डी आर लेफ्ट। अब बी और डी में देखो हो क्या रहा है, आपके मास के यूनिट्स क्या हैं? ग्राम्स में। सो यू विल कन्वर्ट दिस इनटू ग्राम्स। whenever you have to convert kilograms into grams, you multiply it by 1000। करो जरा 1000 से मल्टीप्लाई, 0.122 multiplied by 1000, this comes out to be 122 grams। क्या आपके पास मास आ गया? 122। वॉल्यूम है 47। योर डेंसिटी कम्स आउट टू बी 2.6 grams per cm cube। D is your answer। So, a rock of mass 20 kg is traveling in a space with a speed of this. What is the kinetic energy? 1 upon 2। Mass क्या है? 20 into velocity का square, that is 6 square। Can you calculate the kinetic energy here? भाई 0.5 into 20 into 6 का square. This comes out to be 360 joules as your kinetic energy. C is your answer। Which row shows an advantage and a disadvantage of using a nuclear fuel to generate electrical power? क्या advantage है, disadvantage है of nuclear fuel? If you realize the nuclear fuel does not produce carbon dioxide, that's an advantage। ग्लोबल वार्मिंग कम होती है, सी और डी को आप कैंसिल कर दो। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या होता है ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल? बेटा न्यूक्लियर फ्यूल जब भी आप प्रोड्यूस करते हो या न्यूक्लियर फ्यूल जब भी आप यूज करते हो, देयर इज रेडियो एक्टिव वेस्ट। ए इज योर डिसएडवांटेज। अब आ जाओ 10 पे। विच रो गिव्स द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन एंड द यूनिट ऑफ वर्क डन? वर्क डन की डेफिनेशन क्या होती है? द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और वर्क डन के यूनिट्स क्या होते हैं? जूल्स, बिकॉज इट इज द सेम एज एनर्जी। सी इज योर आंसर। अ हैमर हिट्स अ nail into a piece of wood। Okay, the weight of the nail is negligible। The hammer exerts a force of FH। अच्छा, हैमर यहाँ पे कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है? FH। ओके, एंड अ प्रेशर ऑफ PH। ओके, द नेल एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ व्हाट? नेल कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रही है? FW, एंड एक्सर्ट्स अ प्रेशर ऑफ PW। You have to state whether these forces and pressure compare। Okay, आपने कंपेयर करना है दीज फोर्सेस एंड प्रेशर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप रियलाइज करो तो हैमर जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ऑन द नेल, वो ही फोर्स नेल एक्सर्ट करेगी ऑन द वुड। द फोर्स ऑफ हैमर विल बी इक्वल टू द फोर्स ऑफ वुड। ये दोनों चीजें तो सेम है, बिकॉज जो फोर्स हैमर एक्सर्ट कर रहा है वही फोर्स नेल एक्सर्ट कर रही है ऑन द वुड। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन डी कैंसल आउट। लास्टली, कैन यू हम्बली रियलाइज कि एक फॉर्मूला हुआ करता था, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। अब अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है, इफ योर प्रेशर इज कांस्टेंट, व्हाट विल हैपन? Oh sorry, if your force is constant, what will happen? Pressure will become inversely proportional to area। Can you realize यहाँ पे area is greater? If area here is greater at the hammer, बेटा अगर hammer का area is greater
the pressure of the hammer will be less. However, ये जो nail के साथ है area, that is very very less. Hence the pressure due to the nail on the wood will be greater. ये वाला pressure greater होगा compared to the pressure of the hammer. So is there any option like that? Yes, pressure of wood is greater than the pressure of hammer. A is your answer. Simple. आगे बढ़े. चलो let's move ahead. आगे बढ़ते हैं. The density at a point beneath the surface of a liquid varies with the depth of the point and with the density of the liquid, which changes both increase the pressure beneath the surface of the liquid. अच्छा जी. बेटा लिक्विड में प्रेशर का फॉर्मूला याद है क्या हुआ करता था? रो जी एच. तो अगर आप डेप्थ को इंक्रीज करोगे आपका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. इफ यू इंक्रीज द डेंसिटी आपका प्रेशर फर्दर इंक्रीज हो जाएगा. तो बोथ क्वांटिटीज शुड इंक्रीज योर डेप्थ एज वेल एंड योर डेंसिटी एज वेल. इजी, कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं इसमें. 13 पे आ जाओ. द डायग्राम शोज अ सिलेंडर कंटेनिंग एयर. ओके. द पिस्टन इज फ्री टू मूव and the atmosphere pressure acts outside the cylinder. Okay. As the air is heated, the piston moves to the right. Piston का क्या increase हो रहा है? Volume. Do you remember this formula? Pressure is inversely proportional to volume. अगर आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए. लेट्स सी क्या लिखा हुआ है. विच क्वांटिटी डिक्रीजेस? द एवरेज फोर्स? नो. द एवरेज, ठीक है, the average speed of the air particles? No. The mass of the air inside the cylinder? No. The number of collisions made by air particles with the piston in 1 second decreases. Hence, your total force decreases. Hence, your pressure decreases. Please, guys. अब आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे. A fixed mass of air has a volume of 150 cm cube, this is V1, and a pressure of 120 kilopascals, P1. The volume of the air is now changed to 100 cm cube, this is V2. The temperature of the air remains constant. What is the new pressure? You have to calculate P2. किस तरह निकालोगे? P1 V1 is equals to P2 V2. बेटा P1 की वैल्यू क्या है? 120 किलो पास्कल. 120 इंटू 10 इज द पावर ऑफ 3. V1 की वैल्यू क्या है? 150 cm क्यूब. प्रेशर 2 आपने निकालना है. V2 की वैल्यू क्या है? 100 cm क्यूब. ओके. कैन यू कैलकुलेट P2? प्रेशर P2 निकाल सकते हो. प्रेशर P2 comes out to be 18000 pascals. That is roughly equal to what? 180 kilo pascals. B is your answer. The diagram shows 4 changes of state W, X, Y, and Z. Which row gives the name of the 4 changes of state? अच्छा जी, हमने 4 changes of state के नाम बताने. अगर solid से आप liquid में जा रहे हो, if you are going from solid to liquid, you are undergoing change. Why? That is what? Melting. अगर आप liquid से solid में जा रहे हो, that is known as freezing. Z आपका फ्रीजिंग हो जाएगा, Y आपका मेल्टिंग हो जाएगा. ऐसे ऑप्शन है कोई? यस, बी एंड डी. ए और सी तो कैंसिल आउट हो जाएंगे. अब जब आप लिक्विड से गैस में जा रहे हो, दैट इज नोन एज बॉइलिंग. W विल बी नोन एज बॉइलिंग. W बॉइलिंग लिखा हुआ है कहीं? यस, ऑप्शन डी इज योर आंसर. सिंपल रखना है, एक एक करके एलिमिनेट करते जाओ. यू इवेंचुअली एंड अप विद द करेक्ट आंसर. The diagram shows a metal plate on a hot plate. Oh sorry, metal pan on a hot plate. ठीक है, ये metal का pan है, ये रहा ये चीज. This is on a hot plate that is on the downside. The pan is heated by the hot plate. Okay. How is thermal energy transferred from the hot plate to the metal pan? बेटा क्या आप realize कर सकते हो hot plate भी solid है, metal pan भी solid है, and both of them are in contact with each other. जब भी इस तरह का सिनेरियो होगा that you have two solids and both of them are in contact with each other, the heat transfer का process is known as conduction. A beaker of cold water is heated at its base. अच्छा जी, beaker of cold water को हम क्या कर रहे हैं? बेस पे हीट कर रहे हैं.
What happens to the heated water? बेटा जैसे ही आप वाटर को हीट करते हो, as the temperature of the water increases, what happens? The molecules move away from each other. The volume of the water increases. We know density is equals to mass over volume. अगर आपका वॉल्यूम इंक्रीज होगा डेंसिटी डिक्रीज होगी. तो डिक्रीजेस में ऑप्शन ले लो कोई भी, सी और डी को कैंसिल आउट कर लो. व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ हीटेड वाटर? हमेशा याद रखो जो हॉट वाटर होता है दैट राइजेस. बी इज योर आंसर. ऑल गुड. परफेक्ट. 17 का आंसर इज बी. लेट्स फिर मूव अहेड. The graph shows at one instance the pressure variation along a sound wave. Okay, a pressure variation along a sound wave. Which point on the diagram represents the rarefaction and what is the wavelength of the sound? अच्छा जी, rarefaction क्या होता है? Where you have the minimum pressure. Minimum pressure. यहाँ पे minimum pressure वाला point कौन सा है? Q. So A और B cancel out हो जाएगा. ठीक है, minimum pressure वाला point कौन सा है? Q. A or B option cancel out. What is one wavelength from one crest to the other crest? This X is your wavelength. C is your answer. Let's further move ahead. A cork on the surface of water moves up and down as the wave passes across the surface. The diagram shows how the height of the cork above the average level of the surface varies with time. Okay. The numerical value. अच्छा जी, numerical value of क्या? Numerical value of wavelength of this wave is equal to the numerical value of the amplitude of the wave. बेटा इस वेव का एम्पलीट्यूड क्या है? 2. This amplitude is equal to your wavelength. Wavelength is equal to 2 centimeter. Can you further realize कि एक वेव कितने टाइम में कंप्लीट हो रही है? एक वेव कंप्लीट हो रही है 0.5 सेकंड्स में. तो आपका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 0.5 सेकंड. फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 1 ओवर टाइम पीरियड, दैट इज 1 ओवर 0.5, दैट इज इक्वल टू 2 हर्ट्ज. कैन यू कैलकुलेट द स्पीड? यप. स्पीड कैसे निकालोगे? v इज इक्वल टू एफ लैंडा. फ्रीक्वेंसी क्या है? 2. लैंडा क्या है? 2. दिस कम्स आउट टू बी 4 सेंटीमीटर्स पर सेकंड. सी इज योर आंसर. लेट्स फर्दर मूव अहेड. A water wave moves from deep water to shallow water. जब भी आप डीप से शैलो जाते हो तो क्या होता है? हाँ जी, जब भी डीप से शैलो जाते हो तो क्या होता है? यप. जब भी डीप से शैलो जाते हो तो व्हाट हैपेंस? योर स्पीड डिक्रीजेस, योर वेवलेंथ डिक्रीजेस. डी इज योर आंसर. और डीप से शैलो जाते वक्त योर फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम. डीप से शैलो जाते वक्त योर फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम. ओके. The diagram shows a ray of light directed at a plane mirror. What are the angle of incidence and the angle of reflection? Angle of incidence क्या होता है? The angle between the normal and the incident ray. This is the incident ray. आपने ये angle निकालना है. How will you calculate that? This complete angle is 90 degree. 90 is equals to 40 plus x. X की value क्या आ जाएगी? 90 minus 40. X comes out to be 50 degree. This is your angle of incidence. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? वो भी 50 डिग्री. डी इज योर आंसर. सिंपल. आगे बढ़ते हैं. A ray of light is incident on the surface of the glass at an angle C. The angle C is the critical angle. Which diagram shows what happens to the light? आपने शो करना है what happens to the light. जब भी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल होगा, what will happen? Your incident ray will hit here and it will become normal to the surface. D is your answer. All clear up till now. क्वेश्चन नंबर 10 से 20 तक कोई मसला? परफेक्ट है. आगे बढ़े. चलो आगे बढ़ते नहीं. 23 पे आ जाओ. An object O is placed between a converging lens and one principal focus of the lens. अच्छा जी, ये ऑब्जेक्ट O प्लेस्ड है. देखो ऑब्जेक्ट O कहाँ प्लेस है? लेंस और फोकल पॉइंट के बीच में. तो आपको पता होगा ये कौन सा केस है. दिस इज केस नंबर 5. यहाँ पे कौन सी इमेज बनेगी? वर्चुअल एंड upright. Okay. So let's start drawing the image because we have to calculate the magnification.
तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए लेट्स स्टार्ट लोकेटिंग द इमेज फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज जब भी बनाते हैं हम दो रेज को इस्तेमाल करते हैं भाई। कौन सी दो रेज होती हैं सर? जो दो रेज को हम इस्तेमाल करते हैं इमेज बनाते वक्त, फर्स्ट होती है कौन सी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस। As this ray hits the center of the lens, it passes through the focal point like this. हाँ, इस तरह। ठीक है, आई थिंक या परफेक्ट। और दूसरी रे कौन सी बनाते थे बेटा? वी मेड वन रे दैट वाज पासिंग कंप्लीटली थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, इस तरह से। इसको थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ेगा आई गेस। यप, हाँ, इस तरह से। लेट मी टिल्ट इट फर्दर। देखो ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाना है हमने। मैं मार्क भी कर देता हूँ ऑप्टिकल सेंटर क्या है। यप, नाउ इट इज पासिंग टू ऑप्टिकल। ये रहा ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, जो लोग अभी तक लोकेट नहीं कर पाए, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर। लेट मी हाईलाइट इट इन ब्लैक। ये द सेंटर ऑफ द लेंस। ओके, अब आप रियलाइज कर सकते हो बोथ रेज आर डाइवर्जिंग। सो व्हाट विल वी डू? वी विल एक्सटेंड दीज रेज बैकवर्ड। ये हमने ऑप्टिकल सेंटर वाली रे को तो एक्सटेंड कर दिया इजीली, इसको भी एक्सटेंड कर देते हैं बैकवर्ड। Where are they meeting? They are meeting at this point. ये वाले पॉइंट पे गए। This is your image I. Also, if you are very क्या कह सकते हो, very meticulous about your work, you can make these lines dotted. वैसे तो ये कोई देख रहा नहीं होगा because this is an MCQ paper, but you can make these dotted. Why? Because they are imaginary lines. अब यहाँ पे आप इमेज की हाइट मार्क कर दो लाइक दिस। Simple, let's take it here. Yep, this is your image. Perfect. अच्छा, now you have to calculate magnification भाई। image locate कर ली, अब magnification किस तरह निकालेंगे सर? magnification is equals to what? height of image divided by height of object। height of object। अच्छा जी, अब मुझे बताओ इमेज की हाइट में कितने स्मॉल बॉक्सेस हैं? इमेज की हाइट में कितने स्मॉल बॉक्सेस हैं बेटा? इमेज की हाइट अगर आप देखोगे तो ये 10 स्मॉल बॉक्सेस हो गए। परफेक्ट। देन यू हैव further 10 small boxes, okay? Then how many boxes are these? These are 8। और ऑब्जेक्ट की हाइट में कितने स्मॉल बॉक्सेस हैं? ओनली 10। सो व्हाट विल बी योर मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन में इमेज में कितने स्मॉल बॉक्सेस है? 10 प्लस 10 प्लस 8। ऑब्जेक्ट में कितने स्मॉल बॉक्सेस थे? ओनली 10। 28 डिवाइडेड बाय 10, द मैग्निफिकेशन कम्स आउट टू बी रफली 2.8। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? 2.8 तो नहीं है, बट मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 3 इज योर ऑप्शन। 24 का आंसर विल बी 23 का आंसर विल बी सी। Let's further move ahead. Which statement about red light and violet light is correct? A prism deviates red light more. No. A red light has a lower frequency than violet light. Yeah, that's perfectly correct. Electromagnetic spectrum में आपको ये बात याद होनी चाहिए थी। Ultrasound is used to clean jewelry in a liquid. What is another use of ultrasound? Prenatal scanning. Prenatal scanning क्या होती है? Newborn babies की scanning. Okay. A ship that is stationary on the surface of the sea send pulses of sound vertically downwards towards the seabed. Each pulse that reflects from the seabed is received 1 centimeter after it is sent out. अच्छा देखो, मैं डायग्राम बना देता हूँ। Let's say this is your ship। ये आ गया आपका शिप और ये आ गया आपका सी बेड। ठीक है, ये आ गया आपका शिप, ये आ गया आपका सी बेड।
जो भी आप अल्ट्रासाउंड या साउंड वेव्स भेज रहे हो वो क्या कर रही हैं, वो शिप से निकल रही हैं, सी बेड को हिट करती हैं, सी बेड से रिफ्लेक्ट होके वापस ऊपर की तरफ आ जाती हैं, एंड दिस हैपेंस इन अ टोटल टाइम ऑफ 1 सेकेंड। दिस हैपेंस इन अ टोटल टाइम ऑफ 1 सेकेंड। ओके, आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है। A whale swims under the boat and a pulse is received 0.67 6 seconds after it is sent out. अच्छा जी, अब हो ये रहा है कि एक वेल आ गई है, ठीक है। अब आपके पास एक वेल आ गई है, वेल क्या कर रही है, लेट्स से योर शिप इज हियर ना, योर शिप इज नाउ हियर। अब हो ये रहा है बेटा कि इसको मैं ना थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ, चलो। अब हो ये रहा है, नीचे हमारे पास एक वेल आ गई है, लेट्स से समवॉट लाइक दिस, लेट्स से यू हैव अ वेल लाइक दिस, परफेक्ट। अब हो ये रहा है, जब साउंड वेव्स वेल को हिट करके वापस आ रहे हैं, द टोटल टाइम टेकन फॉर दिस जर्नी इज 0.6 seconds। ओके, द स्पीड ऑफ द साउंड इज 1500 meters per second। What is the distance of the whale above the seabed? आपने क्या निकालना है, देखो आखिर में जाके इसने सवाल पूछा है, निकालना क्या है, यू हैव टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस ऑफ द whale above the seabed, you have to calculate this। कैसे करेंगे सर ये, बहुत इजी। फर्स्ट ऑफ ऑल कैन यू रियलाइज, जब अल्ट्रासाउंड सी बेड पे हिट कर रहे थे तो कितना टाइम में वापस आ रहे थे, 1 सेकंड में। जब अल्ट्रासाउंड वेल को हिट कर रहे हैं तो कितने सेकंड में वापस आ रहे हैं, 0.6 सेकंड में। तो व्हाट इज द टाइम का डिफरेंस, 1 - 0.6, दैट इज 0.4 seconds। what will be the total distance का डिफरेंस, what will be the total distance का डिफरेंस, टाइम इनटू स्पीड। टाइम का डिफरेंस क्या है, 0.4। ओहो, टाइम इनटू स्पीड लिखना था, ये 4 क्यों लिख दिया। व्हाट वाज द स्पीड, 1500। क्या आंसर आ जाएगा, 0.4 इंटू 1500, दिस कम्स आउट टू बी 600। बेटा ये टोटल डिस्टेंस ऑफ 600 मीटर्स हमें क्या बता रहा है, दैट द डिस्टेंस फ्रॉम द वेल टू द सी बेड और वापस टोटल जो है वो 600 मीटर। बेटा ये 600 मीटर हमें ये बता रहा है कि द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द वेल टू द सी बेड, और सी बेड से लेकर वापस वेल तक आपका डिस्टेंस क्या है, 600 मीटर। बट आपने क्या निकालना था, यू हैव टू कैलकुलेट ओनली द डिस्टेंस वंस, द डिस्टेंस ऑफ द वेल अबव द सी बेड। सिर्फ आपने क्या निकालना था, एक्स की वैल्यू निकालनी थी, वन टाइम डिस्टेंस निकालना था। तो आप क्या करोगे, 600 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 300 मीटर्स इज योर आंसर हेयर। 300 meters का कोई ऑप्शन है, ए इज योर ऑप्शन। Okay, what row describes ultrasound waves? Ultrasound waves are longitudinal waves and they have a frequency greater than 20 kilohertz. B is your answer. A quantity is defined as the work done by a source in moving a unit charge across a complete circuit. बेटा जब भी आप यूनिट चार्ज को कंप्लीट सर्किट के अक्रॉस मूव करते हो तो उस क्वांटिटी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट क्या होता है, वोल्ट्स। बी इज योर आंसर। लेट्स फर्दर मूव अहेड। A student connects the circuit shown. The switch S is closed. अच्छा जी, switch S close करना है आपको। What is the reading on the voltmeter? ये लगा हुआ वोल्टमीटर। क्या आप रियलाइज कर सकते हो, इस वोल्टमीटर के अक्रॉस सिर्फ और सिर्फ एक ही रेजिस्टर है, दैट इज 6 ओम। अगर इस वोल्टमीटर को मैं आसान लफ्जों में बनाऊं तो वो कुछ इस तरह से लगा हुआ है, समवॉट लाइक दिस। क्योंकि वोल्टमीटर के अक्रॉस एक ही रेजिस्टर है तो वोल्टमीटर को आप इस तरह भी लगा सकते हो इजीली, यू डोंट नीड टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स। लेट्स रीड्रॉ दिस सर्किट। इस सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। आपके पास एक 6 वोल्ट की सप्लाई है, देन यू हैव अ 3 ओम रेजिस्टर। ओके, देन यू हैव दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस पैरेलल कॉम्बिनेशन की टोटल रेजिस्टेंस निकाल लोगे, यस, 1/6 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/RT। RT इज इक्वल टू 3 ओम्स। इसके बाद आपके पास फिर से 3 ओम्स लगा हुआ है।
Then you have a 6 ohm resistor, and you have to calculate the voltage, yeah, the voltmeter reading across this 6 ohm resistor. How will you do that? बेटा आपने सिर्फ और सिर्फ इस 6 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज की रीडिंग निकालनी है. विच रूल विल यू अप्लाई? वोल्टेज डिवाइडर रूल. या अगर वोल्टेज डिवाइडर रूल नहीं याद तो आप क्या कर सकते हो? व्हाट कैन यू से? व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस? टोटल रेजिस्टेंस क्या है? 3 + 3 + 6. 3 + 3 + 6, दैट इज 12 ओम. बेटा 12 ओम आपकी टोटल रेजिस्टेंस है. टोटल रेजिस्टेंस को कितना वोल्टेज मिल रहा है? 6 वोल्ट्स. तो 6 ओम की रेजिस्टेंस को कितना वोल्टेज मिलेगा? एक्स. एक्स कम्स आउट टू बी 3 वोल्ट्स. बी इज योर आंसर. इस तरह भी कर सकते हो. नथिंग कॉम्प्लिकेटेड हियर. Two resistors connected in series act as a potential divider. The resistors have a resistance of R1 and R2, and the potential difference across them is V1 and V2. Which expression is equals to V1 and V2? बेटा देखो, अगर आप सीरीज में कनेक्टेड हो तो करंट अक्रॉस दिस फर्स्ट रेजिस्टर एंड द करंट अक्रॉस द सेकंड रेजिस्टर विल बी सेम. What is the current across the first resistor equal to? We will apply V is equals to IR. Voltage V1 divided by R1. Current across the second resistor किसके इक्वल होगा? Voltage V2 divided by R2. You have these two equations of the same variable I. दोनों को इक्वेट कर दो. V1 R1 is equals to V2 R2. V2 को नीचे ले आओ, R1 को ऊपर ले जाओ. V1 over V2 is equals to R1 over R2. A is your answer. Simple. Let's further see. There is an electrical current of 1.5 ampere in a 4 ohm resistor. How much energy is transferred electrically to thermal energy in 1 minute? अच्छा जी, आपने एनर्जी निकालनी है. एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? I V T. करंट क्या है? 1.5 एम्पियर. वोल्टेज किस तरह निकाल सकते हैं? डू यू हैव द करंट, डू यू हैव द रेजिस्टेंस? वोल्टेज इज इक्वल टू IR. टाइम क्या है? 1 मिनट. 1 मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट कर दो. 1.5 into current, that is 1.5 into resistance, that is 4 into 60. What does your energy comes out to be? हाँ जी, एनर्जी निकालो सारे. शाबाश, put it in a calculator. एनर्जी किसके इक्वल आती है बच्चों? एनर्जी कम्स आउट टू बी 540 जूल्स. सी इज योर आंसर. आगे बढ़ते हैं. ओके. A square coil is placed in a horizontal uniform magnetic field. अच्छा जी, magnetic field में ये square coil पड़ा हुआ है somewhat like this. This is your square coil. I am trying to draw it in 3D. Yeah, कुछ इस तरह से आपका square coil पड़ा हुआ है in 3D. The plane of the coil is perpendicular to the magnetic field. Currently, if you realize the coil is vertical. बेटा currently अगर आप realize करो तो coil क्या है? Vertical है. Okay. The coil is now rotated about an axis through P at a steady rate. The coil rotates 180 degree. Okay. अभी अगर आप कह दो कि coil जो है वो 0 डिग्री पे, this is at the vertical position. Okay. At the vertical position, always remember AC generator का EMF क्या होता है? 0. So you want a graph that starts from 0. Option A और C में से कोई ग्राफ होगा. Then when this coil has turned 90 degree, बेटा जब ये coil 90 डिग्री टर्न कर जाएगा तो क्या होगा? When this coil has turned 90 degree, इस तरह से, it is in the horizontal position. When the coil is in the horizontal position or when it has rotated by 90 degree, your EMF will be maximum. हमेशा याद रखो कि जब भी आपका कॉइल हॉरिजॉन्टल होगा एसी जनरेटर में आपका ईएमएफ मैक्सिमम, जब भी कॉइल वर्टिकल होगा ईएमएफ 0. तो 90 डिग्री पे ईएमएफ मैक्सिमम, फिर 180 डिग्री पे 0 हो जाएगा बिकॉज अगेन एट 180 डिग्री योर कॉइल विल बिकम वर्टिकल. ए इज योर आंसर एंड नॉट सी. अच्छा जी, क्या लिखा हुआ है? 3 equipments, yeah, 3 pieces of equipment made of magnetic material are listed. The core of a transformer, the needle of a compass, iron fillings used to show a magnetic field pattern.
Which pieces of equipment act as temporary magnet? Core of a transformer temporary magnet होता है. Iron fillings भी temporary magnet होता है. 1 and 3 are temporary magnets. C is your answer. Okay. Well, students are asked to suggest factors that affect the speed of rotation of a direct current motor. Three of their suggestions are listed. ठीक है. Three of their suggestions are listed कि speed of the DC motor को किस तरह affect कर सकते हैं. The strength of the magnetic field, yeah, that can affect the current. Yeah, that can affect the number of coils. That can also affect the speed of the DC motor. Is your answer. A transformer is used to power the lamp. अच्छा जी एक transformer है that is used to power the lamp. There are more turns on the secondary coil than on the primary coil. You can see here number of turns on the secondary greater है than the number of turns on the primary. Which statement is correct? कौन सी statement correct? There is an alternating current in the primary coil and a direct current in the secondary coil. No. There is a larger current in the secondary coil. No. There is a changing magnetic field in the iron core. Yes. 35 का आंसर है C. 35 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? C हो जाएगा. Let's further move ahead. आगे बढ़ते हैं भी. अच्छा. In an electric field, a beta particle follows the path shown. अच्छा beta particle downward deflect हो रहा है. अच्छा that means यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. सिंपल. अगर यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अप डायरेक्शन में नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. Which part does an alpha particles travel at the same speed? बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल तो अल्फा पार्टिकल अपवर्ड की तरफ डिफ्लेक्ट होगा बिकॉज अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज. तो ऑप्शन सी और डी कैंसिल आउट. ऑल्सो डू यू रिमेंबर दैट अल्फा पार्टिकल्स आर हेवियर. है ना ये बात याद है. अल्फा पार्टिकल्स आर हेवियर हेंस दे डिफ्लेक्ट लेस. अल्फा पार्टिकल्स हेवियर है हेंस दे डिफ्लेक्ट लेस. ए नहीं होगा क्योंकि ए ज्यादा डिफ्लेक्ट कर रहा है कंपेयर टू बीटा. पी विल बी योर आंसर. Which row gives the sign of the charge on the nucleus of an atom and the sign of the charge on an electron? न्यूक्लियस पे क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव. इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? नेगेटिव. डी इज योर आंसर. सिंपल. An isotope has a half life of 6000 years. How much time passes before the count rate due to emissions from a sample of the isotope decreases to 1/16 of its initial value? Initial value को x ले लेते हैं. After one half life, your value will become 1 over 2x. After another half life, your value will become 1 over 4x. After one half life, your value will become 1 over 8x. After one half life, it will become 1 over 16x. बेटा कितनी हाफ लाइफ पास की हैं? 1 2 3 4. एक हाफ लाइफ में कितने ईयर्स हैं? 6000. तो 4 हाफ लाइफ में कितने ईयर्स होंगे? 6000 into 4, that is 24,000 years is your answer. C is your answer. What is the approximate time taken by light to travel from sun to earth? भाई sun से earth पे जाने के लिए light को कितना टाइम लगता है? 500 seconds. This is something that you must remember. Where in the solar system is the asteroid belt? भाई solar system में asteroid belt कहाँ पे located है? The asteroid belt is located between Mars and. Is this clear? पूरा पेपर